میری ساس میرا گھر برباد کروانا چاہتی تھی۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اور اپنے شوہر کی محبت کو واپس پانے کے لیے میں تعویذ کے چکر میں پڑ گئی۔ ایک بابے کے بارے میں نے بہت سنا تھا۔ اپنی دوست کو ملوث کر کے میں اس بابے کے پاس جا پہنچی۔ وہ کہنے لگا کہ تجھے صرف اسی صورت میں تعویذ مل سکتا ہے جب تو رات 12 بجے قبرستان میں وہ تعویذ لینے کے لیے آ جائے۔ وہ بابا چلا کاٹ کر ہی تعویذ دیتا تھا۔ اب یہ مشکل تو مجھے اٹھانی ہی تھی۔ اپنے شوہر کو واپس پانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی تھا۔ ویسے بھی بابا کے پہلے تعویذ کا اثر میرے شوہر پر بہت اچھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے میں اپنے شوہر کو سلا کر جیسے ہی تعویذ لینے پہنچی تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ مجھے اپنے فیصلے پر شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے یہاں آنے کا سوچ بھی کیسے لیا۔ میرا دل کیا میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کیونکہ اپنا گھر تو میں اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی تھی۔ میرا نام زینت ہے۔ میں غریب گھر میں پیدا ہوئی۔ 4 کمروں کے مکان میں بڑا کنبہ آباد تھا۔ یہ مکان بھی دادا نے ہجرت کے دوران بنایا تھا۔ تب کے اچھے دور میں یہ آسان تھا۔ آج تو گھر میں پلستر کروانا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے ابا کلرک تھے جن کی تنخواہ مختصر تھی۔ ہم کھانے والے 15 افراد تھے۔ میرے تایا اور چچا کے بچے بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ شروع سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کر ہمیں اپنی جائز خواہشات کے لیے بھی من کو مارنا پڑتا تھا۔ میرے چچا کسی کام کاج کے نہ تھے۔ جس کام پر لگاؤ 10 دن کے بعد استعفیٰ دے کر چلے آتے، اور تنخواہ بھی 0 تھی۔ سارا خرچہ ابا اور تایا کے کندھوں پر تھا۔ چچا کے بھی 2 بچے تھے جس کو میرے ابا اور تایا مل کر پال رہے تھے۔ دادی نے انہیں بہت لاڈ پیار میں بگاڑ رکھا تھا۔ شروع سے اپنا لاڈلا بنا کر رکھا۔ کوئی کام کاج نہ کرنے دیتی تھی۔ تایا اگر ڈانٹ بھی دیتے تو کہتی تھی کہ چھوٹا بھائی ہے، کمانے لگ پڑے گا۔ اسی چکر میں ان کی شادی بھی اپنی بھتیجی کے ساتھ کر دی، جس کی آتے ہی بچوں کی تعداد میں تو اضافہ ہو گیا، لیکن چچا کی عقل میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ دادی نے سوچا تھا کہ بہو آئے گی تو بیٹا عقل مند ہو جائے گا، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لے گا۔ یہ سوچ ایشیا کی 70% ماؤں کی ہوتی ہے، لیکن الٹا دادی کو بیٹے کے ساتھ بہو اور پوتوں کا بھی خرچہ اٹھانا پڑ گیا۔ ہمارے گھر میں زیادہ دادی کی چلتی تھی۔ تینوں بہویں دادی کا حکم مانتی تھی، ورنہ دادی ڈرامہ لگانے میں حد سے زیادہ ماہر تھی۔ میرے ابا تو کچھ زیادہ ہی دادی کا حکم مانتے تھے۔ ماں کی غلط بات پر بھی ہاں ہی کہتے تھے۔ اماں کو بھی دادی کی جی حضوری کرنی پڑتی تھی، کیونکہ ان کے شوہر کا حکم تھا، جب تک میری ماں کی فرما برداری کرو گی تب تک عزت اور احترام سے اس گھر میں رہو گی۔ میرے ابا غصے کے ذرا تیز تھے۔ انہیں اپنے بھائیوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ کبھی اچھا کھانا لے بھی آتے تو سب سے پہلے ان کے بھائی کے بچے ہی کھاتے تھے۔ اگر بچ جائے تو ہمارے نصیب میں آتا تھا۔ عید پر ہمیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا تھا کہ تم تو لڑکیاں ہو، گھر میں ہی رہو گی، باقی بچوں کے کپڑے لازمی آنے چاہیے کیونکہ وہ لڑکے ہیں، انہیں باہر جانا ہے۔ اوپر سے اماں نے ہم 4 بہنوں کو پیدا کر کے شاید دنیا کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ چچی کے بھی 2 بیٹے تھے۔ وہ گردن اکڑا کر کہا کرتی تھی کہ میں نے تو 2 بیٹوں کو پیدا کیا ہے۔ تایا کے بھی بیٹے تھے۔ آخر میں ہم بوجھ سمجھی جاتی تھی۔ شروع سے ہی دادی کو میری ماں پسند نہ تھی۔ اب تو انہیں موقع مل گیا تھا ہر بات میں یہ کہہ دینے کا کہ فضل کی نسل کیسے چلے گی۔ خدا نہ خواستہ اللہ نے ابا کو اولاد کی نعمت سے محروم تو نہیں رکھا تھا، لیکن ایسے ناشکرے لوگ کبھی بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے۔ تایا بہت سیانے تھے۔ وہ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ دادی کے ہاتھ میں رکھا کرتے۔ انہیں بھی اپنی اولاد اور بیوی کا خیال تھا۔ دادی اتنا ناانصافی سے کام لیتی تھی، وہ ہمارے سارے پیسے چچا کے بچوں پر لگا دیتی۔ ان کے بچے ہم سے زیادہ اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ سارا دن محنت مزدوری کرنا میرا باپ کرے اور ہمارا حق کوئی غیر کھا جائے،
उन पैसों पर हमारा हक था, लेकिन किसी तीसरे से क्या शिकायत करते, जब अपना बाप ही इस बात पर राजी ना हो कि उसकी जमा पूंजी उसके भाई के बच्चों पर लगा दी जाए। अब्बा ने कभी हमारे हक में आवाज़ ना उठाई थी। कई बार दादी मुझे और मेरी माँ को मार भी खिला चुकी थी। घर में तमाशा लगाना तो दादी का महबूब मशगला था और मेरी अम्मा उसमें पिस जाती थी। चचा भी दादी से ऐसा उधार मांगते कि जो जिंदगी भर वापस ना करते। अगर हमें किसी काम के लिए भी चंद हजार की ज़रूरत पड़ जाती तो दादी बातें सुनाना शुरू कर देती थी। कहती थी कि महंगाई कितनी हो गई है, अब तुम लोगों के नाज नखरे उठाऊंगी या घर में दाल रोटी का सामान पूरा करूं। अम्मा की तो हर तरफ से शामत आई रहती थी। अम्मा की जेठानी और देवरानी दोनों ही शातिर दिमाग थी। वो अम्मा को हर काम में लगा देती थी। फिर मेरी अम्मा अल्लाह मियाँ की गाय थी, जिसे किसी काम से इनकार करना आता ही नहीं था। वो सुबह किचन में जाती, सारा दिन काम में लगा कर रखती। उनको खुद का बनने संवरने का कोई शौक ना था। ऐसी औरतें मर्द के दिल पर क्या खाक राज करेंगी, जो हमेशा खुद को मासी के रूप में रखती हैं। कई बार मैं अम्मा को ये चीज़ें समझा चुकी थी, वरना तो ये बातें माँ के समझाने की होती हैं। लेकिन मैं अपनी माँ को खुद समझाया करती थी कि ये सादगी आपके काम नहीं आने वाली। खुद को बना संवार कर रखा करें ताकि अब्बा आपके काबू में आ जाएं और ये महारानियाँ आप पर हुक्म न चला सकें। आप सिर्फ दादी और अब्बा की ताबे रहा करें। आप तो घर के हर फर्द की नौकर बनने पर आई हुई हैं। चचा, ताया, ताई, चच्ची, जिसका दिल चाहता है वो आपको काम पर लगा देता है और आप कभी भी उनकी किसी बात का इनकार नहीं करती हैं। ठीक है, औरत को घर बसाने के लिए चंद कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन इतनी कुर्बानी भी ना दे कि वो खुद को ही भूल जाए। अपने आप को देने से क्या फ़ायदा होगा। उनके इस तरह डिस्टर्ब रहने से हम डिस्टर्ब हो रहे थे। ऐसी औरतें खुद का एतमाद खो देती हैं। वो कभी बाहर जाकर लोगों में चार बात नहीं कर सकती। उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हो चुका होता है। मैं उनकी पक्की सहेली थी। वो शुरू से मुझसे हर बात शेयर किया करती थी। हम मिडिल क्लास घराने से थे। मेरा नंबर अपनी बहनों में पहले नंबर पर था। इस वजह से हर चीज़ में मन मार कर रहना पड़ता था। भाइयों के चुंगल से अब्बा निकलते तो अब्बा को कुछ नज़र आता। हमेशा अपने भाइयों का साथ ही देते रहते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। बड़ी चालाक थी। कहने लगी कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, सरकारी स्कूल में टीचर्स इस तरह की तवज्जो नहीं देते। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे। अगर तुम लोग मेरे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो मैं अपने मैके जाकर बैठ जाती हूँ। मेरे बाप और भाई लोग खर्चा उठा लेंगे। उन्हें बातों से बहुत अच्छा लोगों को काबू करना आता था। दादी को भी वो इसी तरह बातें बना बना कर काबू कर चुकी थी। दादी ने कहा कि चंद हजार रुपए ही ज़्यादा लगेंगे, मैं अपने पोतों का मुंह तो देख सकूंगी। यही मेरे बेटे की आगे की नस्ल को बढ़ाएंगे। अगर मैं इनको मैके भेज दूंगी तो मेरे बेटे का घर बर्बाद हो जाएगा। किसी ने ये ना सोचा कि मेरे बाप के कांधों पर कितना बोझ बन जाएगा। वो एक मामूली से वर्कर थे। उनकी तनख्वाह भी कम थी और जो कमाते थे वो लाकर अपनी माँ के हाथ में रखते थे। फिर भी मेरी दादी को ये शिकायत होती थी कि मेरे अब्बा रिश्वत नहीं लेते। शुक्र है अब्बा में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक अच्छाई भी थी कि वो रिश्वत को हमेशा से मना करते आए थे। चच्ची की चाल कामयाब हो गई और उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में लग गए। उनकी देखा देखी ताई ने भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लगवा दिया। घर में खर्चे बढ़ गए और हमारे खर्चे मुख्तसर हो गए थे। हमें मज़ीद हाथ दबाकर घर चलाना पड़ता और हमारी कुर्बानियों को कोई देखने वाला भी नहीं था। अब्बा को हमेशा मेरी माँ से ये शिकायत रही थी कि तुम बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकी, तो मैं उनको कोई ढंग का काम नहीं सिखा सकी। अगर घर में गलती से खाने में नमक मिर्च तेज़ हो जाए तो उसकी गलती भी मेरी माँ के सर में डालती जाती थी। इसी वजह से मुझे घर का कोई फर्द अच्छा नहीं लगता था। मैं तो अम्मा को कहा करती थी कि आप मुंह तोड़ जवाब दिया करें, तो माँ कहती अगर उन्होंने घर से निकाल दिया तो हम किधर जाएंगे। तुम लोग भी जवान हो रही हो, मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ।
मामू ने अपनी बहू बनाकर मुझ पर एहसान कर दिया था। इस उम्र में तुम्हारे बाप से तलाक लेती या अलैदगी का मुतालबा करती अच्छी लगूंगी। सारी उम्र मैंने सब्र और शुक्र के साथ इस रिश्ते को निभाया है। हमारे खानदान में रिश्ता बिगाड़ने वालों की बच्चियों को भी बिगड़ा हुआ ही समझा जाता है। जब तक नाना अब्बू जिंदा थे तब तक हालात मुख्तलिफ थे। वो हर महीने अच्छा खासा खर्चा माँ को अलग से दे जाया करते थे। कभी कभार तो हमारे लिए भी ढेरों सामान लाते। उनके होने से दादी का हुक्म भी थोड़ा कम ही अम्मा पर चलता था और अम्मा का मैका भी आबाद था। मेरी अम्मा खुद भी तब अपने लिए खड़ी हो जाया करती थी, लेकिन जब से नाना का इंतकाल हुआ था अम्मा का मैका गैर आबाद हो गया था। नानी खुद बेचारी अपने बेटों के पैसों पर पल रही थी। वो अगर कभी आ भी जाती तो दादी का रवैया उनके साथ बहुत बुरा होता था। दरअसल अम्मा और अब्बा की शादी सिर्फ दादा की जिद की बिना पर की गई थी। उन्होंने बहुत पहले अम्मा के बचपन में ही अपनी बहन को ज़बान दे दी थी कि उनकी ये बेटी उनके बेटे के साथ ही ब्याही जाएगी। इस रिश्ते से ना तो दादी खुश थी और ना ही अब्बा राजी थे, लेकिन फिर भी दादा की जिद के आगे सबको माननी पड़ी। और जब से मेरी माँ शादी करके आई थी अब्बा अपना गुस्सा और जिद अम्मा पर निकाल रहे थे। उनके हर काम में नुक्स निकालते थे। ऐसे नफसियाती मर्द को कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। शादी से पहले तो अपने लिए कभी स्टैंड ना ले सके, लेकिन बाद में कमज़ोर औरत पर अपना गुस्सा निकालना हक समझते थे। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक औरत बस बर्दाश्त करती रहे, मर्द उस पर हाथ उठाए, उसका खर्चा रोक दे और अपने भाइयों पर खर्च करे, जहाँ खर्च करना उसका फ़र्ज भी नहीं बनता। फिर भी औरत अपने हक के लिए एक आवाज़ नहीं उठा सकती। जहाँ ज़रा सी गलती हो तो औरत को गालियाँ दी जाए, उसको बुरा भला कहा जाए, उसको कहा जाए तुम तो हो ही नालायक। वहाँ औरत अपने अंदर का एतमाद खो देती है। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। हर वक्त सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। आखिर में अगर औरत अपने हक के लिए थोड़ी सी आवाज़ बुलंद कर दे तो उसे बद किरदार या बद अखलाक कहा जाता था। उसकी बेटियों पर भी यही इल्ज़ाम स्टैंप के तौर पर लगा दिए जाते थे। ये मुआशरा बहुत दोगला है। यहाँ से सिर्फ उन लोगों की इज्जत है जो उस दोगलेपन के साथ रहना जानते हैं। हमारे दिल में दादी का अदब व एहतराम ख़त्म होता जा रहा था, मगर मुझे तो शादी के नाम से ही नफरत हो गई। मैंने सोच लिया था कि बड़े होकर कभी भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें सिवाय जलालत के और कुछ नसीब नहीं होता। हम चारों बहनें एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं। हमारी खूबसूरती देखकर हर कोई तारीफ करता था। कितना वक्त गुजर सकता था, हम बच्चियां थीं, अब जवान होने लगी थी। घर की हर चीज़ का बंटवारा होने लगा था। ताई और चच्ची हर चीज़ में अपना हिस्सा रखती थी, लेकिन ये सब दादी को नज़र ही नहीं आ रहा था। वो हर वक्त हम माँ बेटी की टोह लेने से बाज आएं तो उन्हें कुछ नज़र आए। चचा का हाल भी आज नहीं बदला था। वो आज भी उतने ही सुस्त और काहिल इंसान थे। नौकरी ढूंढना तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक उन जैसी नौकरी अब मिलना मुमकिन नहीं है। बल्कि उन्होंने तो दरमियान में एक नया शूशा छोड़ दिया कि मुझे कारोबार खड़ा करके दिया जाए। आखिर को भाई के पैसों को डूबने थोड़ा ही दूंगा। भाइयों को पैसों को दुगना करके उन्हें वापस लौटा दूंगा। अगर मेरे अब्बा के हाथ में पैसे होते तो वो देने से बाज ना आते, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। एक बार मैंने सिर्फ दूध पर लड़ाई की कि हमें वक्त पर दूध नहीं मिलता है, तो दादी ने कह दिया, भाई तुम लोग अपना किचन अलग कर लो। मेरे अब्बा ने मुझे उस दिन बहुत मारा था। मेरी उम्र का लिहाज तक नहीं किया। मेरी ज़रा सी फरमाइश पर मेरे अब्बा भड़क उठे थे। उन्होंने पूरी बात जानने की कोशिश ही नहीं की। पूरे मोहल्ले वालों ने ये तमाशा देखा था। कुछ औरतें तो अम्मा को दिलासे देने लगीं कि बहन तुम ही अपने शौहर को रोक लेती, ऐसी बेदर्दी से बेटी को मार रहा था। मैं हसीन थी, ज़हीन थी, लेकिन ऐसे हुस्न का क्या फ़ायदा जिसको देखने वाली आँख ही ना हो। हमारा किचन तो अलग हो गया, लेकिन
अब्बा अपनी माँ के साथ ही खाना खाते थे। अलबत्ता चच्ची और ताई की शामत ज़रूर आ गई थी। पहले घर का खाना अम्मा बनाती थी, उनके हाथ से तो जैसे स्वाद ही गायब हो गया था। अब उन्हें अपने हाथ के बदमज़ा खाने खाने पड़ रहे थे। सारी उम्र मेरी माँ की कदर नहीं की। हमारे अब्बा तो हमारे घर राशन ही नहीं डलवाते थे, भूख के लाले पड़ गए थे। राशन किचन में ख़त्म होने वाला था। ये नाश्ता सिर्फ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता। पतीली भर चाय में अम्मा 1 पाव दूध डालकर उबाल देती, जो दूसरी मर्तबा गर्म हो जाए तो मज़ीद गहरे रंग की हो जाती। उसके साथ अम्मा की हाथ के पराठे। हाँ, पराठों पर अम्मा कभी समझौता नहीं करती। उनका कहना था कि सुबह का नाश्ता पेट भर कर खाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए, तभी बंदा दिन भर तवाना रहता है। वो गर्मा गर्म और सुर्ख सुर्ख खस्ता पराठे बनाती, जिसको चाय से खाने का मज़ा ही कुछ और होता। ऐसे में उस पतली और गहरे रंग की चाय की कुल्फत भी दूर हो जाती। हम चारों बहनें अब जवान हो रही थी। आगे पीछे बड़े होने के सबब हर साल 2 सूट नए बनाने ही पड़ते थे, जिसको बनाने के लिए हमारी अम्मा को अपनी इज्जत नफ्स का जनाजा निकालना पड़ता था। हम अपनी मर्जी के कपड़े तक नहीं पहन सकते थे। अगर खुद को सज संवार कर रखना चाहें तब भी दादी को मसला होता था। खुलकर हवा में सांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि दादी को मगरिब के बाद हमारा छत पर जाना पसंद नहीं था। दादी हर वक्त हम पर पाबंदियां लगाती रहती। उनकी पाबंदियों से हम खफा ना होते अगर उनके लहजे में कड़वाहट ना होती। वो हर वक्त हमसे खफा रहती थी। उनके लहजे में हमारे लिए हकारत होती थी। हमें बाहर जाने की इजाज़त तक नहीं थी। दादी कहा करती थी, जवान लड़कियां हैं, अगर कल को कोई मामलात ख़राब हो गए तो मेरे बेटे की इज्जत ख़राब हो गई। उन्हें अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं था, बल्कि दुनिया की बातों पर ज़्यादा भरोसा था। वो हमें कॉलेज तक जाने की इजाज़त ना देती। कहती कि आजकल के कॉलेज के हालात बदल चुके हैं। ताया और चच्चा के बच्चे तो कॉलेज या यूनिवर्सिटियों तक जाने के हामी थे, और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि अगर ताई की बेटी को रोका जाता तो वो अच्छे खासे अल्फाज में दादी को ये एहसास दिलाती कि वो उनकी ज़िंदगी में अमल दखल का हक नहीं रखती। स्कूल जाते दौरान भी मेरी दादी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देती कि जिससे इंसान का मूड ख़राब हो जाए। कभी उन्हें बड़ी चादर से मसला होता था कि बाल नज़र आ रहे हैं, तो कभी उन्हें कह कहे लगाती हम नज़र आ जाएं तो बेशर्म कह दिया करती थी। हमारी ट्रॉफियाँ भी उन्हें कुछ ख़ास न लगती थी। कहती थी, पढ़ाई लिखाई में कमा लेने से क्या होगा, आगे जाकर तुम लोगों को रोटियां ही पकानी है। उनकी सोच अभी भी पुरानी ही थी। वो कहती थी कि बेटियों की शादियां जल्दी कर दी जाए, और बेशक वो वहाँ जाकर मार ही खाएं। उसका तस्करा दोबारा मेके में नहीं करना चाहिए, उनकी लाश ही वापस आनी चाहिए। वो कहती हैं कि ससुराल जाकर मेके को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। काश उन्होंने अपनी बारी भी यही ख्याल सोचा होता। खुद तो आज तक अपने मेके का हवाला देती थी और ससुराल की बुराइयां ही करती नजर आती। उन्होंने पूरे मोहल्ले में लगाई भुजाई की आदत को नहीं छोड़ा। हर कोई उनसे पनाह मांगता है। किचन तो पहले अलग हो ही चुका था, अब बारी थी घर को अलग करने की, और ये आवाज़ उठाने वाली कोई और नहीं, मेरी ताई जान थी, जो कहने लगी कि आपका छोटा बेटा तो कभी 4 पैसे कमा कर नहीं लाया, अब मेरी औलाद बड़ी हो रही है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए घर का बंटवारा किया जाए, हम अपना पैसा अपनी औलाद पर लगा सकें। ये सब सुनते चच्ची तो भड़क ही उठी। कहने लगी कि मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब इसकी जिम्मेदारी तो आप सबके कांधों पर ही है। मैं अपने बच्चों को लेकर किधर जाऊंगी। दादी ने भी बीमार होने का बहुत ड्रामा किया। इस ड्रामे में सिर्फ मेरे अब्बा आए थे और हमारा किचन दोबारा से दादी के बावर्ची खाने से जुड़ चुका था। ताई और ताया शुरू से समझदार थे, इसलिए वो दादी की झूठी बीमारी में ना आए और उन्होंने अपना घर अलग कर लिया। उसूल तो ये होना चाहिए था कि अब्बा भी अपना घर अलग कर ले, क्योंकि उन्होंने भी कल को अपनी बेटियों की शादी करनी थी। अब हमें 2 सूट में तो रुखसत नहीं कर सकते थे। चच्ची ने बड़ी चालाकी से मेरी
چھوٹی 2 بہنوں کا رشتہ اپنے بیٹوں کے لیے مانگ لیا، کیونکہ اس طرح ان کا گھر میں رعب بھی قائم رہ سکتا تھا، اور ایسی پڑھی لکھی لڑکیاں ان کے خاندان میں کہاں تھی۔ ہماری خاندانی سیاست کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ جب سے تائی الگ ہوئی تھی ان کے گھر کے تو رنگ ڈنگ ہی بدل گئے تھے۔ ان کے بچے پہلے سے اچھا پہننے لگے تھے، اور یہ بات ہم سب نے نوٹ کی تھی۔ میری چچی کو تو اس بات کی جلن لگی رہتی تھی۔ وہ ابا سے ہر وقت پیسوں کا مطالبہ کرتی رہتی، کبھی بچوں کی جھوٹی فیس کا بہانہ لگا دیتی تو کبھی اپنی بیماری کے چکر میں پیسے لے لیتی، اور ابا بھی اپنی بھابھی کو کبھی انکار نہ کرتے تھے۔ دادی بھی ہر وقت ابا کے آگے روتی رہتی کہ بیٹا اب تم ہی ہو جو اس گھر کو جوڑ کر رکھے ہوئے ہو، تم بھی کہیں اپنی بیوی اور بچوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اور بوڑھی ماں کو بے آسرا مت کر دینا۔ اس بات پر مجھے بے حد غصہ آیا تھا کہ بے شک ماں کی خدمت کرنا ابا کا اول فرض تھا، لیکن اس فرض کے دوران ہم سب کو بھول جانا کہاں ضروری تھا۔ دادی کی عمر اب ہو چکی تھی، ویسے بھی بڑے بیٹے کے علیحدہ ہونے کے بعد دادی کہیں نہ کہیں ٹوٹ چکی تھی۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ اب ان کا حکم اس گھر پر نہیں چلے گا۔ وہ شروع سے زندگی میں حکم چلاتے ہوئے آئی تھی، انہوں نے ساری زندگی حکم ہی چلایا تھا۔ پہلے وہ اپنے شوہر پر حکم چلاتی تھی، پھر بیٹوں پر حکم چلانے لگی، اور پھر بہوؤں کو لے کر آ گئیں اور ان پر حکمرانی کی۔ ان کو کبھی کسی کی بات سننے کی عادت نہ تھی۔ وہ اپنا بلڈ پریشر ہائی کر کے بیٹھ جایا کرتی۔ ہر روز ڈاکٹر کے نسخے ہوتے تھے۔ پہلے ہی گھر کا خرچ تنگ ہو چکا تھا، تایا کے پیسے تو اب آتے ہی نہیں تھے، اب ابا کی کمائی سے خرچ چل رہا تھا۔ اوپر سے چچا کے بچوں کی فیسیں بھی ہزاروں میں تھی، دادی کا خرچہ بھی آ گیا تھا۔ کل ملا کر پورا مہینہ بھی مشکل سے نکلتا تھا۔ پہلے جو ہم مہینے میں 2 بار گوشت کھا لیتے تھے، اب صرف چچی اپنے بچوں کے لیے ذرا سا گوشت بنایا کرتی تھی اور کہہ دیتی تھی کہ میرے میکے والوں نے بھیجا ہے۔ دادی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو ابا نے اپنے بڑے بھائی سے بھی چند پیسے ادھار مانگ لیے تاکہ اپنی ماں کا علاج اچھے اسپتال میں کروایا جا سکے۔ میری ماں جب بھی بیمار پڑتی تھی اسے گلی محلے کے حکیم سے چیک کروا دیا جاتا، اور اپنی ماں کے لیے اتنی تگو دو جاری تھی۔ فرق تو بہت تھا۔ دادی کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی ان کا غصہ 7ویں آسمان پر ہوتا تھا۔ چچی نے تو ان کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب ان کے گندے کام کو بھی ہاتھ لگانا پڑتا تھا۔ ان کی گندگی کو صاف کرنا پڑتا تھا، جو چچی جیسی صفائی پسند خاتون تو کبھی بھی نہ کر سکتی تھی۔ میری ماں جیسی بھولی بھالی عورت ایسے کام ضرور خوشی خوشی کر لیتی تھی، لیکن دادی کی زندگی شاید اتنی ہی لکھی تھی۔ اس وجہ سے دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادی کے انتقال پر جو سب سے زیادہ دکھی دکھائی دیے تھے وہ میرے ابا ہی تھے۔ ان کے علاوہ سب نے خود کو سنبھال لیا۔ میری تائی تو ذرا بھی دکھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ انہیں تو فرق ہی نہیں پڑا کہ ان کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہی حال میرا تھا۔ دادی کے انتقال پر باقیوں کا علم نہیں، لیکن میں تو بالکل دکھی نہ تھی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے۔ اگر وہ چند اچھے کام کر کے مرتی تو ہم اچھے الفاظ میں یاد بھی کر لیتے۔ میں تو شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ورنہ وہ آگے کی زندگی بھی ہماری خراب ہی کر دیتی۔ اب ہم سکون سے سانس تو لے سکتے تھے۔ میرے ابا تو اپنی ماں کے غم میں نڈھال ہو گئے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی ماں کو ہی سب کچھ سمجھا تھا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ دادی نے انہیں ہمیشہ مٹھی میں رکھا تھا، اپنی ہر جائز ناجائز بات کو منوایا تھا۔ دادی کے مر جانے کے بعد سبھی بہت غمگین تھے، لیکن لوگوں کے چلے جانے سے زندگیاں رک نہیں جاتی۔ ابا کو بھی اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنی پڑی۔ اب گھر کا حساب کتاب ہی نئے ہاتھوں میں جا رہا تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ دادی کے مر جانے کے بعد ابا کو ہم نظر آنے لگے تھے۔ وہ ہمارے اوپر توجہ دینے لگے تھے۔ کم از کم اماں کو ہمارے خرچے کے لیے چند پیسے دے دیا کرتے تھے۔ اب گھر کا خرچ بھی میری ماں ہی چلا رہی تھی۔ ابا کے بقول اب گھر میں بڑی وہ تھی۔
मुझे तो बहुत सुकून था कि अम्मा को इतने साल बाद ही सही लेकिन घर में वो मुकाम मिल चुका है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इस बात पर चच्ची अपनी पूरी कोशिश करती थी कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा करवा सके। वो हर रोज अब्बा के सामने कोई नई बात को मसला बनाकर बैठ जाया करती। वो किसी तरह चाहती थी कि अब्बा जिद में आकर सारा खर्चा उनके हाथ में रख दिया करे, लेकिन इतनी बेवकूफ़ तो मैं भी ना थी। इसी वजह से अब्बा के फौरन आने से पहले मैं घर के काम काज में मशगूल हो जाती थी और चच्ची को किसी न किसी बहाने आराम पर बिठा दिया करती। कुछ दिन तो चच्ची मेरी चाल को समझ ना पाई और अब्बा भी हमारी मुट्ठी में आ गए। जिंदगी के इतने साल उन्होंने हमारे अब्बा का खून चूसा था, हमारे अब्बा की कमाई को खाया था। मोहब्बत तो उन्हें अब्बा से ज़रा न थी और ना ही ख्याल था। चच्ची गुस्से में आकर हर बार कोई नया मुतालबा रख देती। मेरे ताया तो उनकी बातों पर गौर ही नहीं करते थे। चच्चा भी हमेशा चच्ची से लड़ते ही आए। जवानी में तो ये मोहब्बत बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब खाली पेट मोहब्बत का क्या अचार डालना था। बच्चे भी उन्हीं की अच्छी खासी बातें सुना दिया करते। हर कोई उनकी माँ की तरह नहीं होता कि दूसरों का पेट काट कर उनके मुंह में नवाले डाले। मैं अब 19 साल की हो चुकी थी और अब्बा ने कह दिया था कि अभी उसकी शादी करने का वक्त आ चुका है। रिश्ते वाली भी रोज़ कोई ना कोई रिश्ता लेकर आ जाती। मैं बेहद खूबसूरत थी, जिसकी वजह से कई लोग मुझे पसंद करके जा चुके थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से जांच पड़ताल करवाने की भी कोशिश की थी। अब्बा नहीं चाहते थे कि बेटियों का रिश्ता किसी ऐसे घर में कर दिया जाए जहां फिर वो सारी उम्र नौकरानी बनकर रहें। लोग आपको किसी हाल में खुश नहीं रहने देते। पहले मेरे अब्बा हमारी बात नहीं सुनते थे तो लोग कहते थे कि माँ ने मुट्ठी में किया हुआ है, और अब जब वो सिर्फ हमारी बात सुन रहे थे तो खानदान वाले बातें बनाने लगे कि ज़रूर माँ बेटी ने जादू किया होगा। मेरा रिश्ता बहुत जल्दी तय हो गया। लड़का मेरी खूबसूरती का दीवाना था। वो एक बार देखते ही इस बात पर जिद करने लगा था कि शादी तो सिर्फ यहीं करूँगा। उनकी माँ ज़रा दादी की तबीयत की मालूम हो रही थी, लेकिन मुझे उन लोगों को सीधा करना ज़रूर आता था। मैं अपनी माँ की तरह सारी उम्र चुप रहकर नहीं गुजार सकती थी। वैसे भी खूबसूरत थी, शौहर को मुट्ठी में कर लेती। एक जगह मेरा रिश्ता तय हो गया। वो लोग तो जल्द शादी करने पर बज़िद थे, लेकिन मेरे अब्बा फिर भी कुछ वक्त लेना चाहते थे। मेरे अब्बा ने मेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस बात का मेरी चच्ची को बहुत गुस्सा था, लेकिन उनके गुस्से से हमने क्या लेना था। मुझे जहेज में हर वो चीज़ मिली थी जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। मेरी अम्मा इस मामले में बहुत खुश थी। कहने लगी, चलो तुम्हारे अब्बा तुम लोगों से तो बहुत मोहब्बत करते हैं। इस बात में कोई शक ना था कि हर बाप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। बेशक वो दिखावा ना करे, लेकिन उसके दिल में ये मोहब्बत हमेशा से अल्लाह ने डाली होती है। मेरी अम्मा हमेशा दुआ किया करती थी कि इन जैसा नसीब हमारा ना हो। वो हमारे लिए परेशान रहती थी। मेरी बाकी तीनों बहनों की भी अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी थी। अब्बा को मनाना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। अब्बा ने सिर्फ इसी सूरत में इजाज़त दी थी कि घर से बाहर जाते वक्त बुर्का पहन कर जाना है और सिर्फ उसी इदारे में दाखिला ले सकते हैं जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हों। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। मैं अपने ससुराल आ चुकी थी। पूरे मोहल्ले वालों ने मेरी शादी को बहुत एंजॉय किया था। एक हफ्ता पहले से अब्बा की इजाज़त लेकर हमने ढोलकी रख दी थी। मेरी अम्मा की भी कुछ ख्वाहिशात थीं जो पूरी होना बाकी थी। रुखसती पर अम्मा ने मुझे बहुत सी नसीहतें की थी। कहने लगी कि अपनी सास की इज्जत करना, कभी तुम्हारी तरबियत पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। तुम्हारे अब्बा इस बात पर बहुत खफा होंगे। हमेशा बड़ों का कहना मानना। मेरा शौहर मेरा दीवाना था। वो मुझे कोई काम नहीं करने देता। उसने एक नौकरानी रख दी थी जो घर के सारे काम काज करके चली जाती थी। मेरी सास का रवैया रिवायती सास की तरह ना सही तो इतना अच्छा भी ना था। वो हमेशा चुपती निगाहों से ही मुझे देखा करती। मैं कभी भी उनकी किसी बात पर कान नहीं धरती थी।
हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। वैसे भी मेरा काम अपने शौहर को खुश रखना था। वो तो सारा वक्त मेरे ही गीत गाता था। मेरी अम्मा भी मुझे खुशहाल देखकर बहुत खुश थी। कहने लगी, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। लेकिन कुछ वक्त के बाद मेरे शौहर का रवैया बदलने लगा। पहले पहल मुझे लगा कि शायद उसका मुझसे दिल भर चुका है। मैंने अपनी तैयारियों में थोड़ा इजाफा कर दिया ताकि मेरा शौहर जब भी काम काज से वापस घर आए तो वो मुझे देखकर खुश हो जाए। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि वो मेरी तरफ देखना ही छोड़ चुका है, जैसे वो मुझसे बेजार हो गया हो। जैसे ही काम से वापस आता, खाना खाते साथ ही सो जाता, कभी कोई बात ही नहीं करता था और सुबह भी उसका रवैया बहुत रूखा सा होता था। ज़रूर ये मेरी सास की ही साजिश होगी। उसके अलावा कौन ऐसा हो सकता था जो मुझसे खार खाए। मैंने कई बार अपने शौहर को बातों बातों में पूछने की कोशिश की कि क्या उसे मुझसे कोई मसला है, लेकिन हर बार वो टाल देता था। मैं अपने शौहर को नहीं खोना चाहती थी। वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हमेशा मुझसे प्यार से बात किया करता था। सारा वक्त वो मुझे देता था और हम रोज़ घूमने भी जाते थे। लेकिन अब उसका रवैया बहुत बदल चुका था। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे मुझे अपनी सास को खुश देखकर ये यकीन हो गया कि ज़रूर ये साजिश मेरी सास की गई है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं ज़रूर सास की चाल को नाकाम करके रहूँगी। अपनी दोस्त से मशवरा किया तो कहने लगी कि तुम्हारी सास तावीज़ पर बहुत यकीन रखती है। इस वजह से ये ना हो कि उसमें तुम्हारे शौहर को काबू करने के लिए कोई तावीज़ करवा रखा हो। मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी थी। ज़रूर मेरी सास ने कोई तावीज़ करवाया है। मैं बहुत परेशान रहने लगी। दिन रात सिर्फ इसी बारे में सोचती थी कि किस तरह इसका हल निकाला जाए। मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग पर बहुत हावी कर लिया था, क्योंकि मेरा घर टूट रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा हंसता बसता घर टूट जाए। मैंने अपने घर वालों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। नहीं चाहती थी कि मेरी ज़रा सी परेशानी में मेरी माँ सारी रात की नींद हराम कर ले। तभी वो मेरे से छोटी बहन का भी रिश्ता देख रहे थे। मेरी माँ तो कहा करती थी कि जैसा तुझे ससुराल मिला है वैसा ही तेरी बहन को भी ससुराल मिल जाए। हम चारों बहनें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थी। हुस्न तो हम पर आकर ख़त्म हो जाता था। मेरी चच्ची ने भी दरमियान में ये बात छोड़ दी थी कि मैं आपकी छोटी 2 बेटियों का रिश्ता अब अपने बेटों के साथ नहीं करना चाहती, क्योंकि आपकी बेटियां हद से ज़्यादा बदतमीज़ और बदज़बान हैं। इस बात का हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि उन्होंने तो हमारे लिए आसानी कर दी थी। मैं तो पहले ही चाहती थी कि मेरी बहनों का रिश्ता वहाँ ना हो। अब मुझे अपना घर भी बचाना था, वरना मेरी माँ की तरबियत पर मज़ीद बातें कर सकती थी और शायद अब्बा का रवैया भी पुराने जैसा हो जाता। इसलिए मैंने अपनी दोस्त को अपनी सारी कहानी सुना दी। वो कहने लगी कि वो एक आलिम बाबा को जानती है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। उनका तो काम ही रोज़ का तावीज़ करना है। पहली बार आलिम बाबा के पास गई तो उन्होंने मुझे तावीज़ दिए। कहने लगे, अभी पक्का काम नहीं किया, इस तावीज़ के लिए तुम्हें मज़ीद चक्कर लगाना पड़ेगा। मैं भी अपनी तरफ से मुतमईन हो जाना चाहती थी कि तावीज़ काम भी कर रहा है या नहीं। मैंने तावीज़ अपने शौहर को पिला दिया। मैं कभी भी ऐसे कामों में ना पड़ी थी। मैं शुरू से इन कामों को गलत समझती थी। कभी गली मोहल्ले से सुन भी लूँ कि फलानी ने अपने शौहर को काबू करने के लिए तावीज़ करवाया है, तो मुझे हंसी आती थी कि दुनिया एक शख्स पर आकर कभी ख़त्म तो नहीं हो जाती। फिर हमें उसके लिए अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अब खुद पर पड़ी थी तो समझ आने लगी थी कि इंसान इसी तरह का है, बेबस क्यों हो जाता है। उस शख्स से मुझे मोहब्बत हो गई थी। अब मेरे दुख सुख का वही साथी था। काश मेरी सास मुझे अपनी बेटी समझ लेती तो मैं भी उसे अपनी माँ बना कर रखती। लेकिन हमारी माँओं को ये डर लग जाता है बहू आकर कहीं हमारे बेटे को काबू में ना कर ले।
पहला तावीज़ पीते ही मेरे शौहर ने अपना रवैया तब्दील कर लिया। मुझे यकीन हो गया कि तावीज़ काम करना शुरू हो चुका है। मैं बहुत खुश हो गई थी और सोचा था कि अल्लाह से बाद में माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि अपने घर को बचाने के लिए मुझे ये सब करना ही था। वो मुझसे पहले की तरह मोहब्बत भरी बातें करने लगे। बहुत दिनों बाद हमने बाहर खाना भी खाया था। मेरे हुस्न के वही कसीदे पढ़ने लगे थे। मैंने उनसे शिकवा भी कर दिया कि दरमियान में आप बहुत बदल गए, तो मुझसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे कि आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। मेरा दिल मुतमईन हो चुका था। मेरी सास अब यकीनन जलने वाली थी कि उनका बेटा दोबारा से मेरे आगे पीछे घूमने लगा है। अगली बार बाबा के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अब पक्का तावीज़ करवाना है, तो रात को 12 बजे कब्रिस्तान में आना होगा, वरना मैं तुम्हें मज़ीद तावीज़ करके नहीं दे सकता हूँ। मेरा काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई थी कि रात को वो भी 11 बजे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी ने देख लिया तो मेरे किरदार पर भी बातें बन सकती हैं, और मेरा शौहर भी मुझे इतनी रात को तो बिल्कुल भी नहीं निकलने देगा। लेकिन हिम्मत तो दिखानी ही थी। अपने शौहर की खातिर मैं ये भी कर सकती थी। इसी वजह से मैंने हामी भर ली और शौहर के सोने का इंतज़ार करने लगी। उस दिन मुझसे छोटी छोटी गलतियां हो रही थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरी सास कहने लगी, आज तुम्हें ठंडे पसीने आ रहे हैं, कहीं खुशखबरी तो नहीं सुनाने वाली। उनकी बात सुनकर मैं उन्हें हसरत से देखने लगी कि काश आपने हमारे दरमियान फूट ना डलवाई होती तो खुशखबरी सुनाने के लिए ऐसे ही चक्कर आते। रात होते ही मैं बड़ी सी चादर लेकर घर से निकल गई। मेरी सास भी गहरी नींद में सो चुकी थी। वैसे भी वो रात को बहुत कम बाहर निकलती थी। उनके घुटने में जो दर्द रहता था, रिक्शा मिलना भी मुश्किल था। मेरी दोस्त ने भी कह दिया था कि वो रात के इस पहर अपने घर वालों को क्या जवाब देकर बाहर निकले। इस वजह से मैंने उसे अपने साथ नहीं बुलाया। अकेले जाना भी वैसे बड़े जिगर का काम था। रिक्शे वाले ने मुझे वहाँ पहुँचा तो दिया था, लेकिन कब्रिस्तान जाते ही मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई। कभी मैं दिन के वक्त भी कब्रिस्तान नहीं गई, और अब रात के पहर जाना तो किसी खौफ से कम ना था। ऊपर से जानवरों की आवाज़ों ने माहौल को मज़ीद हैबतनाक बना दिया था। जैसे ही मैं अंदर कदम रखने लगी, सामने खड़े 2 लोगों को देखकर मेरे पाँव से ज़मीन खिसक गई। मुझे यूं लगा जैसे 7 आसमान मेरे ऊपर गिर गए हों। मेरा शौहर और मेरी सास मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, तुम हमें धोखा देकर यहाँ कब्रिस्तान में क्या करने आई हो? मेरी सास कहने लगी, यकीनन यहाँ पर तावीज़ करवाने आई होगी। मैं रोकर हाथ बांधने लगी कि मैं कुछ भी ऐसा करने नहीं आई थी। मेरा शौहर बहुत गुस्से में था। अगर मजीद ने कुछ कहती तो शायद वो मुझे तलाक ही दे देता। मैं हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम्हारी माँ ने हमारे दरमियान फूट डलवाने के लिए तावीज़ करवाया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अपने किसी भरोसेमंद आमिल से ये बात पता करा लो। शौहर कहने लगा कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम दोनों औरतों ने मुझे क्या कठपुतली समझ रखा है? मैं आज सब कुछ पता करवा कर रहूँगा। उन्होंने अपने जानने वाले को हमारे घर बुला लिया। रात का पहर था, शुक्र है मोहल्ले वालों ने ये तमाशा नहीं देख लिया, वरना 100 बातें सुननी थी। मेरी सास की भी नींद उड़ चुकी थी। वो जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर घर से निकालना चाहती थी, अब वो खुद होश भुलाए बैठी थी। आमिल बाबा ने अमल शुरू किया। मेरे शौहर भी सामने बैठे थे, और ये बात साबित हो गई कि तावीज़ मेरी सास ने करवाए थे। जब मेरे शौहर ने उनसे तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि उन्हें अपना बेटा हाथों से निकलता दिखाई दे रहा था। मेरे शौहर ने हम दोनों को सख्ती से आमिल बाबा के पास जाने से मना किया था, और अपनी माँ को अपने अल्फाज में अच्छे से समझा दिया था। उस दिन के बाद से हमारी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया। मैं आज भी कभी उस रात का सोचूं तो शर्मिंदगी होती है, लेकिन शुक्र है मेरे शौहर ने मुझे एक मौका और दिया था।
وہ پہلے کی طرح مجھ سے محبت کرتے تھے، اپنی ماں کو بھی وقت دیتے تھے۔ میں بھی اپنی ساس کے پرانے رویے کو بھول کر ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔